وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت، تو جمہوریت سب ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی ہے۔ اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو بات چیت کرو بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو۔ اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا؟ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کو نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا۔ کسی کی سیاست اور ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں، فوج کو کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں، خیبر پختونخوا کا مسئلہ وہاں کے سیاستدانوں نے حل کرنا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے پارلیمانی جمہوریت سے ہی مسئلے کا حل قرار دے دیا۔ ایک شخص نے پوری پارٹی ڈکٹیٹر کی طرح چلائی۔ خود کو بے اختیار کہنے والے وزیر اعظم نے آرمی چیف کو قوم کا باپ کہا۔ ماضی میں ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ملک میں آج بھی حکومت با اختیار اور ماضی میں بھی با اختیار تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس۔ اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا میں آپریشن جاری، سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپریشن کی مخالفت کرنے والے بتائیں کہ حل ہے کیا؟ کیا دہشت گردوں کی بیعت کر لیں؟ کیا نور ولی کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے؟ ترجمان پاک فوج کا سوال۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی سہولت کاری دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا۔ وہاں سیاسی اور دہشت گردانہ گٹھ جوڑ نشو نما پا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید، کے پی کے کو کسی صورت دہشت گردوں کے حوالے نہ کرنے کا عزم۔ ترجمان پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ قرار دے دی۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا پاکستان، بلوچستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ افغانستان پورے خطے میں دہشت گردی کا بیس آف آپریشن بن گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ۔ پاکستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739۔ اس سال جو ٹوٹل دہشت گرد جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہتے ہیں ان کی تعداد ہے 5,397، 5,400 کے لگ بھگ۔ ان میں سے 3,811 خیبر پختونخوا میں which is 71% of the total terrorist incidents۔ سال 2025 میں ملک بھر میں دہشت گردی کے 5,397 واقعات رپورٹ ہوئے، 1,235 افراد شہید، 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ پورا سال 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 14,658، بلوچستان میں 58,778 آپریشنز ہوئے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں 1,739 آپریشنز کیے گئے۔ 27 خودکش حملے ہوئے جن میں 2 خواتین کو استعمال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے اعداد و شمار پیش کر دیے۔ یہ خوارج کی اپنی ویڈیو ہے، یہ سیکیورٹی فورسز کے اگینسٹ انہوں نے استعمال کیا ہے کواد کاپٹر۔ دس از ہاؤ دے آر یوزنگ اٹ۔ یہ مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کواد کاپٹرز لے کے، اور وہاں پہ جو سا ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کرنے کے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوج کے کواد کاپٹر حملوں میں کولیٹرل ڈیمیج کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ خوارج کی جانب سے آبادی پر کواد کاپٹر استعمال کرنے اور مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنانے کی ویڈیوز شیئر کر دیں۔ معصوم شہری خوارج کے حملوں میں شہید ہوتے ہیں۔ فوج کواد کاپٹر صرف غیر آباد علاقوں یا نگرانی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی وضاحت۔
मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो ज़रूरी सबक सिखाती है जो सिखाना ज़रूरी था। मार्का हक में हिंदुस्तान का मुंह काला होता दुनिया भर ने देखा। भारत ने पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट करने की कोशिश की। भारत के पास कोई सबूत था तो सामने लाते, हम कार्रवाई करते। किसी पाकिस्तानी शहरी को नुकसान पहुंचाने का इख्तियार किसी को दिया है, ना देंगे। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को नहीं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को टारगेट किया। वज़ीर आज़म ने खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात करार दे दी। PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास। निजकारी कमीशन में इस्लाहात का काम तेज और कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। वेनेजुएला के सदर और उनके अहलिया पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद मुनशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी की चार्जशीट। मादुरो और अहलिया सिलिया फ्लोरेस ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अब भी वेनेजुएला का सदर और जंगी कैदी हूँ, अगवा करके अमेरिका ला गया। निकोलस मादुरो का जज से मुकालमा, अदालती कार्रवाई 17 मार्च तक के लिए मुलतवी। मादुरो की अहलिया को जख्मी हालत में अदालत लाया गया। जज का सिलिया फ्लोरेस का मुकम्मल इलाज मुआलजा करवाने का हुक्म। Views the recent developments in Venezuela with profound concern. Escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles, and the path forward must be one of dialogue and diplomacy. पाकिस्तान ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई आलमी आमन के लिए खतरा करार दे दी। एक तरफा फौजी ऑपरेशन, UN चार्टर और रियासती खुद मुख्तारी के नजरिए की खिलाफ वर्जी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कायम मकाम पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून का ताकत की बजाय सियासी इख्तिलाफात का मुकालमे और सिफारतकारी से हल निकालने पर जोर। एक तरफा कार्रवाइयों से तवील मुद्दत अदम इस्तेहकाम के खदशे का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। सलामती काउंसिल इजलास में एंटोनियो गुटेरेस का तहरीरी बयान पढ़कर सुनाया गया। वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, फरीक़ैन को UN चार्टर पर अमल दरामद की तलक़ीन। अक़वाम मुत्तहिदा में वेनेजुएला के सफ़ीर ने सदर मादुरो और अहलिया की गिरफ्तारी का अमरीकी ऑपरेशन गैर कानूनी अमल करार दे दिया। रूस, चीन और कोलंबिया ने भी अमरीकी फौजी कार्रवाई को आलमी कवानीन की पामाली का नाम दे दिया। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालबा। No war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial. अमरीका ने वेनेजुएला पर कब्जे का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वेनेजुएला या वहां के अवाम से कोई जंग नहीं, महदूद कार्रवाई में मफरूज मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब। अमरीकी सदर ने अगले एक माह के दौरान वेनेजुएला में इलेक्शन के तासुर को रद्द कर दिया। अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में है, ना ही अफवाज को दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के अबूरी सदर के दौर पर हलफ उठाया। 56 साला रोड्रिगेज का माजूल सदर मादुरो और उनकी अहलिया के मुबैना अगवा पर दुख का इजहार। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अमरीका से ताउन की पेशकश। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की अमरीका से वापसी हुकूमत की तरजीह करार देती। पार्लियामेंट से खिताब में मादुरो के साहबजादे निकोलस गुवेरा जज्बाती हो गए। कहा, वेनेजुएला महफूज हाथों में है, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और आज़म बरकरार है।
वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर का वतन वापसी का इशारा, मुल्क को अमेरिका का तवानाई मरकज बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मारिया कोरिना ने उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स को मनशियात स्मगलिंग का अहम किरदार करार दे दिया। लंदन में फलस्तीनी सिफारत खाना खुल गया। मुख्तसर तकरीब में फलस्तीनी सफीर ने सिफारत खाने के इफ्तिताह को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील करार दिया। मगरबी लंदन में मौजूद इमारत, जिसे पहले फलस्तीनी मिशन कहा जाता था, अब बाज़ाब्ता तौर पर सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, आज भी किसी रहनुमा या खानदान के किसी फर्द को मुलाकात की इजाजत न मिली। साबिक वजीर आजम की तीनों बहनों का कारकुनान समेत तहाल फैक्ट्री नाके पर धरना। धरने में सलमान अकरम राजा, शानदाना गुलजार और नईम पंचोता समेत कई रहनुमा भी शरीक। अगर मुज़ाकिरात की नौबत 5 बड़ों की मुलाकात तक आई है, फिर ना ही समझो। न 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं, न मुज़ाकिरात के लिए 5 बड़ों का होना ज़रूरी है। अगर मुलाकात आप इब्तिदा करना चाहते हो तो बहनों की और खानसा बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात कराओ। बैरिस्टर गौहर ने राना सनाउल्लाह के 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए। बनाने की जहमत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब वो मान जाएंगे तो ठीक है, फिर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात हो जाएंगे। अगर उन्होंने यही रास्ता इख्तियार किए रखना है तो मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा ये अंदाज़ा है कि ये इससे उनको नुकसान होगा। राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई को रवैया तब्दील करने का मशवरा। साबिक वजीर आजम ने रवैया ना बदला तो उन्हें ही नहीं, तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी खतरे में पड़ जाएगी। वजीर आजम की मुशीर बराए सियासी उमूर ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। गैर हाजिर 40 से 45 मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वकला सफाई ने अडयाला में बानी से मुलाकात की इस्तदा कर दी। बानी अब सजा याफ्ता है। वकला सफाई मुतालिका फॉरम से रुजू कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल, समाअत 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी। लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत दीगर के खिलाफ गाड़ियां चलाने के मुकदमात में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। नून लीग का दफ्तर चलाने के मुकदमे में कल मजीद गवाह तलब। कंटेनर जलाने के मुकदमे की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 27वीं तरमीम को अदलिया की आज़ादी, फेयर ट्रायल के हक और कानून की बालादस्ती पर एक हमला करार दिया। जजेस को बगैर किसी दबाव और मुदाखलत के अदालती फराइज अंजाम देने की आज़ादी होनी चाहिए। तरमीम बगैर किसी मुशावरत के पार्लियामेंट से मंजूर की गई, फौरी नजरसानी की जाए। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में जल्द तोसी का इम्कान। मुख्तसर काबीना के बाइस से कई महकमों के दफ्तरी उमूर मुतासिर होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा काबीना सिर्फ 10 वज़रा और मुशीरों पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान की निगरां काबीना के 12 वज़रा ने हलफ उठा लिया। स्पीकर GB असेंबली नज़ीर अहमद ने निगरां वज़रा से हलफ लिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला समेत अहम सियासी शख्सियात और अफसरान की शिरकत। पंजाब के 224 गांवों को मिसाली बनाने का मंसूबा। पहले मरहले में हर गली खूबसूरत, रोशन और महफूज बनाई जाएगी। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का हर तरक्याती मंसूबा वक्त पर मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ख़त इसहाक डार को पेश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने खैरिस्ताली के जज्बात का गर्मजोशी से जवाब दिया। मुलाकात में पाक ईरान ताउन बढ़ाने के अज़्म का आदा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबा बंदी के हेड क्वार्टर का दौरा। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड ने इस्तकबाल किया। शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहरी सहूलियात के साथ तरक्की के तेज़ रफ्तार निज़ाम पर भी ब्रीफ किया गया। कहा शंघाई तेज़ तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। इस्लामाबाद को भी शंघाई जैसा डेवलप करना चाहते हैं। इस्तिफादा करने के लिए फौरी इकदाम करेंगे। वज़ीर दाखिला की दौरे के दौरान गुफ्तगू। पाक फ़ज़ाइल के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेशी हम मनसब हसन महमूद खान की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तारीख़ी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सरबराह बांग्लादेशी फ़ज़ाइया की PAF के जंगी रिकॉर्ड की तारीफ। पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल महारत से फ़ायदा उठाने में दिलचस्पी का इजहार। बलूचिस्तान में लेवीस फोर्स पुलिस में बाकायदा अज़म। सूबे में यकसा कानून के निफाज से मुताल्लिक देरीना इंतजामी इबाम खत्म हो गया। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का समाजी राब्ते की साइट पर पैगाम। कहा A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम भी खत्म कर दी गई। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत तर होगा। ओगरा की गैस 7% महंगी करने की सिफारिश मुस्तरद। हुकूमत ने अगले 6 माह के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। लकी मरवत में सीमेंट फैक्ट्री बस धमाके के बाद ऑपरेशन में जख्मी पुलिस एहलकार ने बन्नू के अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद एहलकार DSP लकी मरवत के साथ बतौर गनमैन ड्यूटी सरंजाम दे रहा था। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। असलहा, छीने गए मोबाइल फोन्स और लूटी हुई रकम बरामद। लंडी कोतल चुरंगी पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। साथ ही मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब गोड पर पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में 21 साला तालिबा के इक़दाम खुदकुशी का मामला। तालिबा ने इमारत से कूदने से कबल 27 मिनट तक फ़ोन पर बात की। आखिरी कॉल मोबाइल से डिलीट कर दी गई थी। तफ्तीश में इंकिशाफ। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर्स लिए। गैर मुतमईन होकर वालिद और भाइयों को बताया। फातिमा शब्बीर की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। सेशन कोर्ट लाहौर में जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक अबूरी जमानत में 26 जनवरी तक तौसी। मुलजिमान को कमरे अदालत से वापस जाने की इजाजत। वकील NCCIA ने अदालत से रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत मांग ली। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी की रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। कराची में सड़कों पर कचरा जलाने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा। सिंध सरकार का फैसला। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इजलास। कॉन्ट्रैक्ट की गई गाड़ियों में ट्रैकर लगाकर 24 घंटे काम लेने की हिदायत। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला थम न सका। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान जहां अफराद की तादाद 25 हो गई। 1000 अफराद गिरफ्तार। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के 2 हफ्ते बाद इसराइली वजीर खारजा का हरगेसा टाउन का दौरा। खुद साख्ता सदर अब्दुल रहमान समेत आला हुकाम से मुलाकातें। सोमालिया ने इसराइली इक़दाम नाकाबिले कबूल मुदाखलत करार दे दिया। गजा के हौसलामंद फलस्तीनियों को तबाही के बावजूद खुशियों की तलाश। मासूम फलस्तीनी बच्ची की इमारत के मलबे के दरमियान सालगिरह मनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडोनेशिया के सूबे शुमाली सोलावेसी में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेले में बहकर 14 अफराद हलाक, 18 जख्मी। 4 अफराद लापता हो गए। सैकड़ों मकानात तबाह। भारत में मुसलमान क्रिकेटर्स के खिलाफ तासुब बढ़ता जाने लगा। मैच विनिंग फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को फैमिली समेत वोटिंग ID साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया।
T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश भारत में मैचेस न खेलने पर डट गए। वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट है और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ही बात होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने साफ बता दिया, बांग्लादेश की जानिब से अपने एम्पायर्स भी भारत न भेजने का ऐलान मुतवक्के। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर ली। फास्ट बॉलर को हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज पर आईपीएल से फारिग कर दिया गया था। पाकिस्तान ने सह मुल्की अंडर 19 सीरीज के फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। 158 रन का हदफ, 1 विकेट पर अबूर। समीर मिन्हास की 42 गेंदों पर सेंचुरी। कराची फिश हार्बर पर नायाब गैर मुल्की मछली की आमद पर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। WWF पाकिस्तान ने हमलावर मछलियां आबी हयात और माहीगीरी की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दी थी। एनडीएमए ने शुमाली इलाका जात और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी। कोयटा, ज़ियारत और कल्लात समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कड़ाके की ठंड से बीमारियां फैलने का खदशा। अवाम और काश्तकारों को पेशगी इंतजामात का मशवरा। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। और टेनिस कोच की जजीरे पर सयाहों को खेल सिखाने की कहानी। अमरीकी फिल्म आइलैंड 30 जनवरी को रिलीज होगी।